Hey everyone, this is Pooja Yadav and welcome to Gigs for Gigs. And I hope you all stay safe and healthy. And in this pandemic, your health is very important. So please be at stay at your home and be healthy and safe. This is our first session for class ninth. And before starting this, we will discuss about the organization Gigs for Gigs that provided all the videos for you. So first जो gigs for gigs है provide some online courses and live courses and also runs school learning program. In this you get some notes from the official site of the gigs for gigs, and you also register yourself under some courses, some live courses and some online courses, and some courses are paid and some courses are unpaid, so you go for it for the better preparation of the examination. And it definitely help you in preparation of your exam, so go for it. After that we will discuss about the syllabus of the class 10th of NCRT, and we discuss only the syllabus of biology of class 10th. And in biology you have 7 chapters in the book of NCRT. So let's get started with the chapter first, and your first chapter is life processes. So life processes, first we discuss about the life processes. जो life processes क्या होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कुछ खाया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका रिमूवल हुआ, वो सब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आ जाते हैं। वो हमें लाइव रखने में हेल्प करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड दीज आर द सम प्रोसेसेस और that happening in our body. First one is nutrition, first one is respiration, transportation and excretion. So in this unit we talk about these three systems, and we also talk about nutrition. In this chapter we talk about what is nutrition, what are the type of nutrition. Like there are two type of nutrition. First one is autotrophs and second one is heterotrophs. So autotrophs and heterotrophs. So we discuss about that कि autotrophs क्या होते हैं and heterotrophs क्या होते हैं. Autotrophs are those organisms that make their own food, and heterotrophs are those organisms that depends on other to get their foods. So हम इनके बारे में पढ़ेंगे. After that हम इन three main systems है. respiration क्या होती है, respiration क्या होती है, हम intake करते हैं ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर and exhale करते हैं CO2. ये इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या क्या होता है हमारी बॉडी फंक्शनिंग में, ये मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करती है, ये हमें लाइव रखने में कैसे हेल्प करती है. विल टॉक अबाउट दैट. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. जो ब्लड है वो मिनरल्स एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर. सो हम ब्लड एंड हार्ट पढ़ेंगे इन ट्रांसपोर्टेशन. एंड इन प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो वाटर है, न्यूट्रिशन है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर. इसके एंड आफ्टर दैट we talk about excretion के अंदर we mainly talk about the kidney है, ये रिमूवल यूनिट होती है हमारी बॉडी की. तो हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ किडनी वर्क्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस यूनिट. एंड आफ्टर दैट विल टॉक After that, we talk about the second unit, and your second unit is control and coordination. इस unit में हम पढ़ेंगे how we control your muscles, how we control your thinking, running, walking, standing, sleeping. जो हमारे body में functions हो रहे हैं हम उनको कैसे control करते हैं और उनको कैसे coordinate करते हैं brain के साथ और other जो body functions है उनके साथ. So first we talk about control and coordination in animals.
एंड जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्रॉम आर with the help of your nervous system के अंदर, and in our nervous system your brain and spinal cord is included. So in this chapter we talk about brain and spinal cord and how they control our body. After that, human brain, in human brain we talk about the parts of the brain. Like there are three parts of the brain. First one is फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और जो इनकी मेन फंक्शनिंग्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो ब्रेन है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है। लाइक हमारे वोमिटिंग सेंटर्स होते हैं वो भी ब्रेन में होते हैं, हमारे हंगर सेंटर्स होते हैं वो भी ब्रेन में होते हैं, कि हमें इस टाइम भूख लगी है, वो सब क्या कौन डिसाइड करता है, अपना ब्रेन डिसाइड करता है। सो वी टॉक अबाउट द ब्रेन। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक सडन रिस्पॉन्स होता है किसी भी एनवायरनमेंट चेंज के रिस्पोंड में। लाइक हमने किसी गर्म चीज़ को, हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, उसके बाद क्या होगा, हम उससे अपना हाथ हटा लेंगे, तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द हार्मोन्स इन एनिमल्स। मीन्स जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। देन वी टॉक अबाउट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन्स है, थाइमस हार्मोन्स है, एड्रेनल हार्मोन्स है, थायमीन है, एंड डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है बॉडी के अंदर टू डू सम फंक्शंस। सो हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट प्लांट्स। We also डिस्कस द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, कि उसको कैसे ग्रो करता है, किस डायरेक्शन में ग्रो करता है, एंड उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के थ्रू, अपने मूवमेंट को ग्रोथ के थ्रू है वो रिप्रेजेंट करता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि जो प्लांट्स है वो कैसे स्टिमुलस को रिस्पोंड करते हैं। मीन्स लाइक उनके लाइक वो सनलाइट को कैसे रिस्पोंड करते हैं। We talk about that, and after that, at the end of this session, end of this chapter, we talk about movement due to growth। तो हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर। आफ्टर दैट we reach at unit 3, and your third chapter is reproduction. So reproduction can so in reproduction we talk about how living organism make their babies. So we talk about that. First of all we talk about some asexual mode of रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर इन दिस प्रोसेस, लाइक मेल और फीमेल ईदर वन प्रेजेंट जो होगा इन्वॉल्व होगा इन दिस प्रोसेस। एंड these are the types like fusion, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and the spore formation. These are includes in asexual mode. We'll talk about that. And after that we talk about sexual modes of reproduction. In this process both male and female are included. So जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं वो होती है सेक्सुअल मोड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दिस रिप्रोडक्शन टाइप we talk about humans and animals. After that we talk about some flowering plant, उसके जो parts है, उसका जो मेल organ है, फीमेल organ है, we talk about that। and at the end of this chapter we talk about human reproductive system। वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन हेल्थ नीड के बारे में पढ़ेंगे।
why we need good reproductive health, इसके बारे में पढ़ेंगे. And at the end of the this chapter we talk about the method of family planning, because family planning is very important to us, because जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. सो टू मेंटेन दिस, मेंटेन करने के लिए हमें मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए कि how we control this. And in fourth unit we talk about heredity and evolution. So in this chapter we talk about heredity and evolution. So what is heredity? फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? अपने जो जेनेटिक फीचर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. वी टॉक अबाउट दैट एंड दिस इज हेरिडिटी. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन हेरिडिटी. सो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. मेंडल जो था एक साइंटिस्ट था और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी के ऊपर. उन्होंने क्या लिए थे? गार्डन पी की वैरायटीज ली थी, कुछ कलर वेरिएशंस लिए थे, कुछ हाइट वेरिएशंस लिए थे, और उसने क्या किया था? उनको ग्रो किया था और उसके अंदर इनहेरिटेंस जो हेरिडिटी है उसको ऑब्जर्व किया था. सो हम मेंडल कंट्रीब्यूशन के अंदर ये पढ़ेंगे. आफ्टर दैट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मींस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइक कैसे जो हमारे जेनेटिक फीचर्स है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सब कैसे पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पेरेंट्स से कैसे मैच होती है. वी विल डिस्कस दैट इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. After that, we talk about determination of sex, and we need to know that that the sex is depend upon the X and Y chromosomes, because and X and Y chromosomes are your sex chromosomes. So जो offspring का sex होता है वो depend करता है X chromosomes और Y chromosomes के ऊपर. And always remember that the sex of the offspring is always depend on the male parent, because मेल के पास जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एंड एक्स एंड वाई होते हैं, एंड फीमेल के पास एक्स एंड एक्स होते हैं. सो फीमेल के जो हार्मोन्स, जो फीमेल्स के जो क्रोमोसोम्स कैरेक्टर होंगे वो एक्स एक्स की फॉर्म में इनहेरिट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड मेल के एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं. सो एक्स अगर उसने इनहेरिट किया, अपना सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स है वो इनहेरिट किया, तो जो इसका भी एक्स इनहेरिट हुआ तो एक्स एक्स फॉर्म होगा, मीन्स गर्ल फॉर्म होगी. एंड इफ मेल पेरेंट्स मीन्स फादर इनहेरिट वाई एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स, सो एंड फीमेल ने फिर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट किया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एक्स वाई मीन्स बॉय होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स होता है, मीन्स जो जेंडर होता है, ऑलवेज डिपेंड अपॉन ऑन फादर, नॉट ऑन मदर. एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मीन्स हम स्टोन मैन से कैसे ह्यूमन बने, होमो सैपियंस बने. वी टॉक अबाउट दैट. And at the end of this chapter we talk about some acquired and inherited traits. Means acquired traits क्या होती है? जो हमने आफ्टर बर्थ गेन की है, रिगेन की है, वो acquired traits होते हैं. लाइक ओबेसिटी हो गई, वो हमने आफ्टर बर्थ ही, जेनेटिक नहीं होती है, वी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ. सो दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड, जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें एक्वायर, जो पेरेंट्स से हमें मिली है, लाइक हमारे फीचर्स हो गए, हमारी हाइट हो गई, हमारा कलर हो गई, हाइट हो गए, फीचर्स हो गए, all are inherited traits, and acquired are like obesity is acquired traits. And we also talk about the fossils. In this chapter we talk about fossils too. And in chapter 5, your चैप्टर 5 है सोर्स ऑफ एनर्जी. मीन्स जो हमें अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है वो हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 5. सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट these two main
source of energy. First one is conventional source of energy and second one is non conventional source of energy. So first we need to know about what is conventional source of energy. So conventional source of energy क्या होती है? व्हेन वी यूज दीज एनर्जी वंस, हम उसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते, मीन्स यूज नहीं कर सकते, मीन्स वो एक बार अगर हमने यूज कर ली तो हम उसको वापस से यूज नहीं कर पाएंगे. दीज एनर्जीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ऑल कम्स अंडर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज हमने एक बार कोल यूज कर लिया तो हम उसको वापस से यूज नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. And fossil fuels, biogas, power plants, thermal power plants, wind energy, all comes under conventional source of energy. Because इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उनको अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो हम उसको वापस से यूज नहीं कर पाएंगे. That's why these are conventional source of energy. And after that we talk about non conventional source of energy. Non conventional source of energy क्या होते हैं? अगर हमने उन एनर्जीज को यूज कर लिया तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दोज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी, like tidal energy, geothermal energy, ocean thermal energy, nuclear energy, all comes under non conventional source of energy. Means once used can use again. These are non conventional source of energy. And conventional source of energy, if we use once can't use again. So you can easily differentiate between conventional and non-conventional energy. And after that we talk about environmental consequences. Environmental consequences में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहा है. विल टॉक अबाउट दैट, लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे हम. ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे हम. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. सो दीज आर एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस. And in chapter 6, your environment, we talk about your ecosystem and their components. Means in this chapter we talk about biotic and abiotic factors of ecosystem. Ecosystem के biotic and abiotic factors है उनके बारे में बात करेंगे. After that we talk about food chain and food web. Food chain क्या होती है and food web क्या होती है, we'll talk about that. We also talk about environmental problems, ozone layer depletion and waste production and management. Means जो हमारे हाउस होल्ड गार्बेजेस है, डिस्पोजल है, उसको जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे. ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर अर्थ. So we'll talk about that. And at the end of this chapter we talk about biodegradable and non biodegradable substances. So biodegradable and non biodegradable substances क्या होते हैं, exactly क्या होते हैं? Biodegradable substances are those substances which are degraded or decomposed by microorganisms in earth. Like कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी अर्थ के अंदर, हमारी सोइल के अंदर, वो उनको डिकम्पोज कर सकते हैं. अगर वो उनको डिकम्पोज कर देता है तो दीज आर बायोडिग्रेबल सोर्सेज, बायोडिग्रेबल सब्सटेंस. एंड नॉन बायोडिग्रेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी अर्थ के अंदर, वो उनको डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं कर पाते. लाइक प्लास्टिक है, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड नहीं कर पाते. दैट्स वाई बैन लगाया गया है प्लास्टिक के ऊपर. दैट्स वाई गवर्नमेंट बैन प्लास्टिक्स. एंड जो बैग्स है वो आजकल सेलुलोज के बने होते हैं या फिर जो क्लोथ्स होते हैं उनके बने होते हैं, पेपर बैग्स हैं. बट प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया गवर्नमेंट में बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. अगर ये ऐसे ही अक्यूमुलेट होते रहे हमारे नेचर में तो दिस इज डेंजरस फॉर अर्थ. दैट्स वाई गवर्नमेंट बैन प्लास्टिक. After that we talk
about the last chapter of your NCERT biology, and this is sustainable management of natural resources. So in this chapter we talk about कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को टू फुलफिल द फ्यूचर अवेबिलिटी जो फ्यूचर के अंदर ज़रूरतें होंगी हम उनको कैसे फुलफिल करेंगे उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरतें होंगी उनको कैसे फुलफिल करेंगे वो कैसे फुलफिल होगी अगर हम अभी से कंजर्व करके रखेंगे लाइक वाटर है ऐसा बोलते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो वाटर है उसकी अवेबिलिटी कम हो जाएगी तो हम उसको कैसे कंजर्व करेंगे उनको कैसे सेव करेंगे विल टॉक इन दिस चैप्टर. After that we also talk about forest and wildlife because जो डिफोरेस्टेशन है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है नाउडेज. डिफोरेस्टेशन इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं हम अपनी जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम फॉरेस्ट है उनको कट कर रहे हैं एंड लाइक पेपर्स बना रहे हैं हम वहाँ पे रहने के लिए जगह बना रहे हैं बिल्डिंग्स बना रहे हैं मॉल्स बना रहे हैं. सो जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल पोल्यूशन वो सब इंक्रीज पोल्यूशन है इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन लेवल है कम हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस. सो वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो टू आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स जो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं जैसे फॉरेस्ट को कौन कौन यूज कर सकता है कैसे यूज कर सकता है क्यों यूज कर सकता है ऑल कम्स अंडर स्टेक होल्डर मीन्स जो फॉरेस्ट में रहता है वो या फिर उनकी जो प्रोटेक्शन करते हैं उनकी मैनेजमेंट करते हैं ऑल आर स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट. सो आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट वोटर्स. वोटर के बारे में बात करेंगे वोटर की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे सेव वोटर वाले जो नारे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हमें क्यों सेव करना चाहिए वोटर एंड ऑल अबाउट दैट. ऑल्सो टॉक अबाउट वोटर हार्वेस्टिंग मीन्स जो स्टोर वोटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं लाइक रेनी ड्यूरिंग रेनी सीजन वोटर को स्टोर कर लेते हैं जो अर्थ के अंदर कुछ वो वेल्स बना देते हैं स्टोरिंग के लिए जगह बनाते हैं उसके अंदर स्टोर करते हैं एंड देन प्यूरिफाई करते हैं ट्रीट करते हैं उसको और फिर यूज़ करते हैं फर्दर उसको यूज़ करते हैं. सो हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे डैम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज coal and petroleum are important for many functions like automobiles के लिए फैक्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स के लिए इट्स वेरी नेसेसरी. ऐसा बोला गया है कि जो पेट्रोल है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है पेट्रोलियम लेवल है वो हमारी अर्थ के अंदर वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है तो वी नीड टू कंजर्व इट फॉर फ्यूचर के लिए हमें इसको कंजर्व और मेंटेन मैनेज करना पड़ेगा. सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट ऑल द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर हो गए पेट्रोल कोल हो गया एंड फॉरेस्ट हो गए वाइल्ड लाइफ हो गए तो हम इन सब की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. कंजर्वेशन हमें क्यों करनी है बिकॉज हमें इसकी फ्यूचर में भी जो ज़रूरत होगी दैट्स वाई वी कंजर्व इट वेरी वेल. So thank you, and these are your seven chapter of NCERT or biology. So in further videos we talk about these chapters one by one. So please, and thank you for attending this session. After that, after in further videos, tomorrow we'll talk about chapter first of class 10th. This is life processes. So we'll talk about life processes in next video. And thank you.